Assalamu alaikum, dear students. Here your lab instructor, engineer Abir Siddiq. Today's experiment is experiment 6 to understand the simulation of bioheat equation using MATLAB. Lab outline and lab objective, equipment needed, theoretical background, software implementation, and then the result. Lab objective is the bioheat equation, and the equipment which we need in the lab is the PC and the software MATLAB. First of all, I tell about the little bit introduction about the biological systems. All biological bodies living in space dependent temperature feed environment. कि जितने भी आप लोग के बायोलॉजिकल बॉडीज़ का मतलब ये है कि लिविंग है पड़े, ठीक है, जानदार जिनको हम बोलते हैं, डिपेंड करे तो टेम्परेचर पर। टेम्परेचर का मतलब है उनकी ज़िंदगी इन्वायरमेंट से इफेक्टेड होती है, ठीक है। डैट इज़ इवन इन सिंगल ऑर्गेनिज्म देयर आर नो यूनिफॉर्म टेम्परेचर्स ऑफ ऑर्गन्स एंड द टिश्यूज़. द नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टेम्परेचर फील्ड्स causes the energy transfer between the organs and tissues with the perfused blood as well as the body interfaces through the skin. What is the bioheat equation? Heat transfer in living tissues is a complex process. वो कहते हैं जो heat transfer होते हैं living tissues में complex process होता है. And the mathematical modeling needs the simplification allowing to apply its method. Hereafter we will consider in general human bioheat problems where the core body temperature is maintained at the level of 36 and the 37 Celsius. In general, the heat exchange between a living body and the environment taking place through the skin. heat exchange होता है living body में और environment में वो take place होता है skin से. Involves the mechanism of conduction, convection, radiation and the prescription. Radiation basically is the energy transfer via the electromagnetic wave action. Convection is transfer of thermal energy through a fluid due to the bulk motion of the fluid. Evaporation requires the energy for the phase ट्रांजिशन. इवेपोरेशन को हम लोग यूज़ करते हैं. फेज़ ट्रांजिशन का मतलब है चेंजिंग इन द फेज़ के एक हालत से दूसरी हालत में. कहने का मतलब ये कि बर्फ़ है तो वो पानी बन जाती है, पानी से दोबारा बर्फ़ जब हम उसको फ्रिज में रखते हैं या ठंडी जगह पे रखते हैं, ठीक है, वो उससे फेज़ ट्रांजिशन का इधर वर्ड यूज़ किया गया. The human body temperature is affected by many factors such as environmental conditions, temperatures of media surrounding tissues, metabolism in muscles and the blood circulation. ये वो क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कंडीशन हो जाती है टेम्परेचर्स में, मीडिया सराउंडिंग टिश्यूज़ है, मेटाबॉलिज्म जो हमारी इफेक्ट कर रहे होते हैं मसल्स में, और ब्लड सर्कुलेशन. हीट एक्सचेंज हम लोग की स्किन से कैसे होती है. स्किन इज़ द लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गन ऑफ द बॉडी enabling the protection from the surrounding environment and playing the significant role in the thermoregulation, sensory and the host defense function. क्योंकि इस तरह से जब गर्मी आती है तो हमें पसीना आता है, ठीक है, हम लोग के जो बॉडी के पोर्स वगैरह होते हैं वो खुल जाते हैं, मसाम वगैरह. द प्राइमरी रोल्स ऑफ द थर्मोरेगुलेशन कंप्राइजेज द हीट जनरेशन, एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन, ट्रांसमिशन एंड द वेपराइजेशन. एब्जॉर्ब कर रहा होता है, रेडिएशन को वो कर होता है, ट्रांसमिट कर रहा होता है और वेपराइज कर होता है, बुखारात की सूरत में जा रहा होता है. That is the primary process occurring at the skin is the thermal energy exchange with the environment. In human, the skin properties, structure and thickness depend on the location and the function. The skin includes the two layers, epidermis and the dermis. The former allows the heat release by the convection, radiation and the prescription. In this context, the typical forearm skin temperature is about the 31 Celsius, while the body temperature is about the 33 Celsius. Hence, the increase in temperature of a deep tissues requires the higher temperature to be imposed at the skin surface. The thermoregulation of the body by help of the skin function is mainly by changing the blood flow rate in the microcirculatory bed consisting of arterial veins, capillaries and venules. इस पे डिपेंड कर होते हैं. अच्छा, अगर आप लोग इस पिक्चर पे गौर करें, ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी बनाई हुई है, मीन्स ह्यूमन टांग आपको यहाँ पे शो की हुई है. बाय प्रिस्क्रिप्शन होती है, स्किन सरफेस है, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, फैट है, उसके अंदर मसल्स है, बोन है, ब्लड की परफ्यूजन हो रही है और स्किन से हीट उसके साथ इंटरनल रिड्यूस और बोथ, ठीक है. अभी आप लोग का छोटा सा मैटलैब कोड है, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्यूजन इक्वेशन है, ठीक है, उसमें NX है 50 है, नंबर ऑफ स्टेप्स है स्पेस में, ठीक है, NT 30 है, नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स. dt आप लोग का डेरिवेटिव लिया गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0.1 है. dx है 2 डिवाइडेड बाई nx माइनस 1, विड्थ ऑफ स्टेप स्पेस है. x हमारे पास क्या है, 0 से 2 तक की हमने रेंज सेंड की हुई है, ठीक है, और u इज इक्वल टू 0 यूनिट स्टेप फंक्शन है, वो nx 1 है, प्री एलोकेटिंग है, और un 0 इसे प्री एलोकेटिंग है. अच्छा, विस्कोसिटी कोफिशिएंट क्या है, डिफ्यूजन की 0.1 है. बीटा है, फार्मूला है वी एस इंटू डी, स्टेबिलिटी कंडीशन आ जाती है, UL 1 है, ठीक है, यू आर इज इक्वल टू 1 है. आपका UNL जो बेसिकली लेफ्ट न्यूमान उसका कोफिशिएंट है, ठीक है. आप लोग के इनिशियल कंडीशन हम लोग करते हैं, स्केयर वेव हम लोगों ने सेट किया इनपुट पर. लूप चला रहे हैं, फॉर लूप आई से NX तक है, उसकी रेंज सेट कर दी है लेस देन है 2.5. अगर मैंने एल्स की कंडीशन कर दी
देन वो क्या कर देगा, अगर वो करेगा तो वो रन करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, वेलोसिटी प्रोफाइल को कैलकुलेट करना है। तो आप लोग की प्लॉट है, प्लॉटिंग द वेलोसिटी प्रोफाइल है, एक्सिस है, टाइटल है हम लोग का या डिफ्यूजन है, हम लोग काउंट कर रहे हैं। एक्स लेवल पे आप लोग के कोऑर्डिनेट्स है, वाई लेवल के आप लोग का ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी प्रोफाइल है, ठीक है। इम्प्लिसिट सोल्यूशन है आप लोग की, अगर हम देखें तो आप लोग के रिजल्ट में आप लोग की एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स है, बेटा ये आप लोग की ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी प्रोफाइल है कि बॉडी किस तरह से एब्जॉर्ब कर रही है, उसको प्रिफ्यूजन कर रही है, कन्वेक्शन रेडिएशन कर रही है, ठीक है। म्यू 0.01 है, बीटा की वैल्यू ये है, और टाइम टी इज इक्वल टू आप लोग का 3 यहाँ पर सेट किया गया है, ठीक है, कि किस तरह से आप लोग की बॉडी यहाँ पे ऑब्जर्व करती है। मैंने इनपुट पे स्केयर वेव आप लोग की सेट की हुई थी, ठीक है, तो वो आप लोग की आउटपुट पर इस तरह से वो शो की जा रही है कि वो किस तरह से है।